ٹیچر ہمیں نہ سکھائے ہم اس قدر جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے. کامیاب کرنے والا خدا کی ذات ہے، لیکن کوئی نہ کوئی جو ہے یہ خدا کی مہربانیاں ہوتی ہے. آئے ہم پاسٹر لیاس صاحب کے لیے زوردار جو ہے وہ تالیاں بجائیں. خدا ان کے گھرانہ کو بہت زیادہ برکت دے اور خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے کہ جو خدا کے ہاتھوں سے جو یہ پیار کرتے. آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے بادشاہ جلد آنے والا ہے. کیا سیکھیں گے جی؟ بادشاہ جلد آنے والا ہے. ایک دوسرے سے کہیے کہ آپ کا بادشاہ، میرا بادشاہ آنے والا ہے. کیا آپ تیار ہیں؟ کہیے ایک دوسرے سے. کیونکہ آج میرے عزیزو پوری دنیا کے اندر اس جو ہے وہ جشن کو منایا جا رہا ہے. آج ہم سیکھیں گے کہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ ڈالیاں پکڑی ہوئی ہیں، وہی لوگ ہیں جو نعرے بلند کر رہے ہیں، اور جب وقت آیا بادشاہ کے جو ہے وہ بادشاہ کو قبول کرنے کا تو انہوں نے کہا کہ برابا کو چھوڑ دو اور اس کو کیا کرو؟ مسلوب کرو. اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر ہم جو ہے صرف ڈالیاں ہی جو ہے وہ گلیوں کے اندر جو ہے وہ گیت بولتے اور جو ہے وہ نعرے بلند کرتے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا. یہ تو بس ایک چھوٹی سی تیاری ہے. اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمارا بادشاہ جلد آنے والا ہے. زکریا کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 9ویں آیت جو ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر دیجیے. وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. آمین. خدا ان کے پاک کلام کو پڑھیں اور سنیے پر خدا ان کی ہاتھ پر کو تو سب بولے آمین. ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے. مالک خدا، یسوع مسیح کے نام سے ہم کون ہیں جو آپ کے بیٹوں کو جان سکے؟ جیسے آپ نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا مالک خدا، آج ہمارے بھی ذہنوں کو کھولیے تاکہ میرے مالک خدا ہم اپنے آپ کو آپ کی بادشاہی کے لیے تیار کر سکے اور آپ کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے. کثرت سے برکت دیجیے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین. آمین. مسیح میں آپ خداوند آپ سبوں کو برکت دے اور آج کا دن آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو. اور خدا کا شکر ادا کرتے کہ خداوند اپنے لوگوں کو خوشیاں پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ خداوند خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ خداوند کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ تو نہایت شادمان ہو. انسان جو ہے وہ کب شادمان ہوتا ہے؟ جب اس کے دل کے اندر جو ہے وہ خوشی اس کو ملتی ہے، جب اس کو جو ہے وہ خدا کا جلال اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہوتا ہے تو وہ نہایت جو ہے وہ شادمان ہوتا ہے. اسی طرح شاگرد جو ہے وہ بھی بہت زیادہ شادمان تھے اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نعرے بلند کر رہے تھے. تو لوگوں نے شاگردوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوئے. کیا ہوئے لوگ؟ خوش ہوئے یا نہ ہوئے؟ بتائیے. خوش نہیں ہوئے. اور بادشاہ یسوع مسیح سے کہنے لگے کہ ان شاگردوں کو جو ہے وہ چپ کروا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کیا کہا جی یسوع مسیح نے؟ یسوع مسیح نے کہا اگر یہ چپ ہوئے تو پتھر چنار دیں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے میرے بادشاہ نے، میرے مالک نے، میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، وہ پلان، وہ منصوبہ، وہ جلد جو ہے وہ ظاہر ہونے کو ہے اور پوری دنیا جان جائے گی کہ میرے باپ نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. خدا ان کی شکر گزاری کرتے. دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ ان کو ووٹ ڈالے جاتے ہیں تب وہ بادشاہ بنتے ہیں، لیکن ہمارا بادشاہ جو ہے وہ اصل سے بادشاہ ہے. جب وہ پیدا ہوا تو لوگوں نے کیا کہا؟ آئے ہم اس کو جو ہے وہ سیکھیں گے. متی کے انجیل اس کا 1 باب
जी किस में जो है वो पढ़ दीजिए। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। आमीन। फिर इसके बाद मत्ती के इंजील उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत जो है वो पढ़ दीजिए। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि वो बादशाह जल्द आने वाला है। और जब यीशु मसीह पैदा हुए तो कलाम के अंदर लिखा है कि कई मजूसी जो है वो सितारा देकर यीशु मसीह को सजदा करने आए। और जब यीशु मसीह को सजदा करने आए तो उन्होंने क्या कहा? बताइए क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। क्या कहा जी? बुलंद आवाज से बोलिए, क्या कहा? जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते जब हमारे यीशु मसीह पैदा हुए तो यीशु मसीह को जो है वो कई जो है वो मजूसी यीशु मसीह को सजदा करने आए। वो बादशाह जो है वो असल से बादशाह है। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते कि जब हम अपने यहोवा खुदा की प्रशंसा करते हैं तो खुदा उनकी बरकतें हमारी जिंदगियों के अंदर जारी और सारी होती है, क्योंकि ये खुदा का क्या है जी? फजल है। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। पुराने एहतरामा के अंदर जो है वो बेशुमार पेशन गोइयाँ जो है वो की गई है कि उस बादशाह का जो है वो आना कैसे होगा, उस बादशाह के साथ क्या सलूक किया जाएगा। और कलाम के अंदर लिखा है लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा। और खुदा की शुक्रगुजारी करते कलाम के अंदर ये भी लिखा है और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के बेटे का जलाल। और जब यीशु मसीह पैदा हुए तो जब बादशाह को पता चला वो बादशाह डर गया। उसके दिल की धड़कन जो है वो तेज हो गई। वो सोचने लगा कि मैं बादशाह हूँ, मेरी सीट पर कौन आ गया है। लेकिन कलाम खुदा फरमाता है कि जब खुदा यीशु मसीह के जो प्लान खुदा ने अपने लोगों की जिंदगियों के अंदर रखे हैं वो जरूर जो है वो पूरे होंगे। यहाँ पर लिखा है वो सादक है और निजात उसके हाथ में है। निजात किसके वसीला से है जी? किसके वसीला से? रसूलों के बाद 4 बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर क्या लिखा है बताइए? वहां पर लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम जो है वो निजात पा सके। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब बागे अदन के अंदर चले जाएं तो आदम और हवा से जब गुनाह हुआ खुदा ने चमड़े के कुर्ते जो है उनको पहनाए, यानी कि खुदावन ने उनके लिए जो है वो निजात का जो है वो बंदोबस्त किया। और मेरे और आपका बादशाह जो है इस मकसद के लिए जो है इस रोए जमीन पर आए। और कलाम के अंदर लिखा है क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और निजात उसके हाथ में है। और मत्ती के इंजील के अंदर हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है मत्ती के इंजील के अंदर उसके बेटा होगा और तो उसका नाम क्या रखना जी? क्या रखना जी? और यीशु को वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से क्या है? आवाज कम है। सब नामों से क्या है? सब नामों से क्या है? और जो कोई उसकी हजूरी के अंदर आ जाएगा खुदा उसको अबदी जिंदगी जो है वो अता करेंगे। और यहाँ पर लिखा है यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? आज यीशु मसीह जो है वो चंडी के अंदर नहीं आएंगे। यीशु मसीह जो है वो अपने लोगों के लिए अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। क्या आप जो है वो तैयार है? बेशुमार ऐसे लोग हैं जब ये वक्त आता है अपने आप को गुनाह की हालत के अंदर वो जिंदगी बसर कर रहे हैं और खुदा उनसे यही
फरमा रहे हैं कि मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें क्या दूंगा? और इब्रानियों के हाथ के अंदर लिखा है कि अगर तुम उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने दिलों को सहत ना करो। पहला शमूएल उसका 8वां बाब 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक जो है वो पढ़ दीजिए। आज पहला शमूएल 8वां बाब 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। और उसके कहने लगे, देख तू ज़हीफ है और तेरे बेटे तेरी राह पर नहीं चलते, अब तो किसी को हमारा बादशाह मुकर्रर कर दे जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने खुदावंद से दुआ की। और खुदावंद ने शमूएल से कहा कि जो कुछ ये लोग तुझसे कहते हैं तू उसको मान, क्योंकि उन्होंने तेरी नहीं बल्कि मेरी हकारत की है कि मैं उनका बादशाह ना रहूं। जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उनको मिस्र से निकाल लाया आज तक करते आए हैं कि मुझे तलब करके और मबूदों की परस्तिश करते रहते हैं, वैसा ही वो तुझसे करते हैं। आमीन। मेरे सीसो, आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि वो बादशाह आने वाला है। और इस स्टोरी के अंदर हमने सीखा कि जो खुदा का बंदा शमूएल है, लोगों ने जो है वो बादशाह का जो है वो कहा कि हमें बादशाह जो है वो चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि जब खुदा का बंदा शमूएल जो है वो बुरा हो गया, उसके बेटे जो है उसकी राह पर नहीं चले, तो लोगों ने क्या कहा, अब तू किसी को हमारा बादशाह क्या करते? मुकर्रर करते जो और कौमों की तरह हमारी अदालत करे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमको कोई बादशाह दे जो हमारी अदालत करे, तो ये बात शमूएल और खुदा को क्या लगी थी? बुरी लगी। जब आप यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दी है, जब आप उसकी नहीं सुनते, आप मुंह से जो है वो बादशाह कहते हैं, अमल नहीं करते, तो कलाम के अंदर लिखा है कि शरीरों को मेरे आइन बयान करने का क्या फायदा है। और कलाम के अंदर ये भी लिखा है कि जब ईमान के साथ अमल नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि यकूब 2 बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? ऐसा ईमान उसे निजात नहीं दे सकता। और आज हम सीख रहे हैं वो बादशाह जल्द आने वाला है। और यहाँ इस हवाला के अंदर, इस आयत मुबारका के अंदर हमने सीखा कि लोगों ने जो है वो बादशाह की डिमांड की और खुदा ने उनको ऐसा बादशाह दिया जो उन पर जुल्म करने लगा, उनको जो है वो सताने लगा। फिर उनको मजा आया और खुदा ने कहा अब इनको क्या आएगा? मजा आएगा। हमारा बादशाह जो है वो जिंदा खुदा है, उसकी कब्र भी खाली है और सलीब भी जो है वो खाली है। मुकाशवा की किताब निकालिए, उसका 19वां बाब उसकी 16वीं जो है वो पढ़ लीजिए। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन का इख्तियार जो है वो क्या कहा जी? मुझे दिया गया है। आए हम इस बुलंद जो है इस आयत को बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, क्योंकि इस आयत के अंदर हम शैतान को जो है वो ललकार कर कहते हैं कि ऐ शैतान, तू कुछ नहीं कर सकता, हमारा बादशाह यीशु हमारे साथ है। क्या आप तैयार हैं? खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत है। आपने बुलंद आवाज से पढ़ना है ताकि हम मिलकर जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि अगर तू अपनी जुबान से क्या करे? इकरार करे। क्या करे जी? अगर इकरार किया जाता है तो
मुंह बंद करके तो नहीं किया जाता, खोल के किया जाता है ना। और ज़िक्रिया की किताब के अंदर हमने जो है वो सीखा है कि तू खूब ललकार, तू खूब जो है वो अपनी आवाज को बुलंद कर। आए हम इसको बुलंद आवाज से जो है वो पढ़ेंगे। और उसकी आवाज काम है, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है, ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदा की शुक्रगुजारी करते मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला क्या है? बुलंद आवाज से क्या है? सब कहिए कि मैं मुबारक हूँ, मैं मुबारक हूँ। यहाँ पर लिखा है मुबारक है, लेकिन बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुकाशवा का नाम सुनते ही डर जाते हैं और मुख्तलिफ सवालात उनके ज़हन में आ जाते हैं, जो मुकाशवा पढ़ने से इंसान उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पर तो लिखा है वो मुबारक ठहरता है, इंसान उल्टा नहीं बल्कि सीधा हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर लिखा है और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह। वो सारी दुनिया के अंदर जितने भी बादशाह हैं वो उनका हाकिम है, और सारे बादशाह और बादशाह का जो दुनिया के बादशाह हैं उनका दिल भी जो है वो यीशु मसीह के कंट्रोल में है। बादशाह का दिल भी खुदा के यीशु मसीह के कंट्रोल में है। जहां पर चाहे खुदा ज़मीनी बादशाह के दिल अरादा को खुदा बदल देते हैं। और यहाँ पर लिखा है और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। खुदा की शुक्रगुजारी करते कि खुदावंद अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुकाशवा की किताब उसका 6 बाब निकालिए। बाब की नामी और 11 जो है वो पढ़ दीजिए। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी, जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोले कि ऐ मालिक, ऐ कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम फितरत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। आमीन। आप मुझे ये बताएं, जो बादशाह होते हैं वो क्या करते हैं? क्या करते हैं? और यहाँ पर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखी, जो खुदा के कलाम के सवाब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है कि जान देने तक भी क्या रहे जी? क्या रहे? जान देने तक भी वफादार है। तो मैं तुझे जिंदगी का क्या दूंगा? ताज दूंगा। अगर लोग वफादार नहीं होंगे उनको जिंदगी का ताज नहीं मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उन रूहों को देखा, जो खुदा के कलाम के सवाब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, जिन्होंने कहा कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। और यहाँ पर लिखा है और वो बड़ी आवाज से चिल्लाकर बोलने लगे, ऐ मालिक, ऐ कदूस बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे
خون کا بدلہ نہ لے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی، قیامت اور زندگی، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر بھی جائے تو بھی وہ کیا رہے گا؟ کیا رہے گا جی؟ تو جو مسیح میں مرتا ہی نہیں اس کو مسیحا کیسے زندہ کرے؟ جو مسیح میں چلتا نہیں یہوہ خدا یسوع مسیح اس کو کیسے زندہ کرے گی؟ اور کلام کے اندر لکھا ہے کہ مبارک وہ ہے جو پہلی قیامت میں جو ہے وہ شریک ہو۔ اس لیے ہم نے مسیح میں مرنا ہے۔ جب مسیح میں مر جائیں گے ہمارے لیے پیکیج ہے، ہمارے لیے بینیفٹ ہے کہ یسوع مسیح ہمیں کیا کریں گے؟ زندہ کریں گے۔ کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جتنے مردے میری آواز سنیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے جی؟ وہ جیئیں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے جو خدا کے کلام کے ثواب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے۔ یہ وہ روحیں ہیں جو مسیحا کے لیے قربان ہو رہی ہے۔ اور ایک میں تمثیل کو پڑھ رہا تھا، ایک جو ہے وہ مالک تھا، اس نے جو ہے وہ صبح جو ہے وہ مزدور لگایا، دوپہر کو وہ گیا اور مزدور جو ہے وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس کوئی مزدوری نہیں تھی، اس نے اس کو بھی لگا لیا۔ شام کو گیا اور اس نے اس کو مزدور کو لگا لیا، اور جو پہلا مزدور تھا اس نے سوچا کہ مجھے زیادہ جو ہے وہ زیادہ مجھے پیسے ملیں گے۔ مالک نے جب اس کو پیسہ دیا تو وہ غصے کے اندر آ گیا، اور غصے کے اندر آ کر کہتا ہے کہ میں تو صبح کا لگا ہوا، تو مجھے آپ نے ویسا ہی جو ہے وہ آپ نے مجھے اتنے ہی پیسے دیے ہیں۔ مالک نے کہا کہ اے نوکر، کیا میں نے تجھے جو پیسہ ٹھہرایا تھا اس کے مطابق میں نے تجھے پیسے نہیں دیے؟ اس جو ہے تمثیل کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی جو ہے وہ دوپہر کو خدا کے لیے شہید ہو رہا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ صبح جو ہے وہ خدا کے لیے شہید ہو رہا ہے اور شام کو شہید ہو رہا ہے، خدا ایک جیسا سب کا انصاف کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اس بات کا آپ کو سمجھ آئی ہے اس تمثیل کے اندر کہ خداوند نے سکھایا کہ ایک جو ہے وہ مالک تھا، اس نے ایک مزدور کو دیکھا، ٹھیک ہے، مزدور جو ہے صبح کو اس نے لگایا، مزدور لگ گیا، دوپہر کو وہ گیا، اس نے اس کو بھی لگا لیا، اور جو دوپہر والا تھا اس نے سوچا مجھے کم پیسے ملیں گے، جو شام والا تھا اس نے سوچا مجھ سے بھی کم ملیں گے، لیکن مالک نے ایک جیسا کیا کیا؟ ان کو پیسے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولنے لگے۔ کیا کرنے لگے جی؟ یسوع مسیح نے کہا اس بے انصاف قاضی نے تو انصاف کر دیا ہے، کیا میرے لوگ جو دن رات مجھ سے فریاد کرتے ہیں میں ان کی نہ سنوں گا؟ جو خدا کی راہوں پر چلتے ہیں، جو بادشاہ کا انتظار کرتے ہیں، جو بادشاہ کو اپنی زندگی میں ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح جب آئیں گے تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر خدا کے بیٹے یسوع کے پاس ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولنے لگے، اے مالک، اے قدوس برحق، تو کب تک ہمارا انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ جو ہے وہ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ تھوڑی مدت آرام کرو جب تک تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ آج میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جلد آنے والے ہیں۔ اگر ہم یوں ہی رسمی جو ہے وہ دعائیں کرتے رہیں گے اور جو ہے وہ پھر کام نہیں چلے گا، کام اس وقت چلے گا جب آپ جو ہے وہ روحانی طور سے اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنے آپ کو مسیح کی طرح، پلوس کی طرح کہیں گے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ جب یسوع مسیح آنے والے ہیں تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تاکہ نوبت پہنچے۔ جب آپ یسوع کو شخصی طور سے قبول کر لیں گے تو خدا ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آپ تالیاں جا کر یسوع کے نام کو جلا دے سکتے ہیں۔